Yeah, very good morning to all of you. Today's topic is the cellulose acetate electrophoresis. So this is the old technique to separate the basically protein molecules from the sample, basically body fluids, for example serum. So this is an important technique to separate the biomolecules on the basis of their charges, basically. Cellulose acetate, a type of paper, fine quality of paper that used in this process. So this technique is first developed by a German chemist Joachim Kohn. Joachim Kohn in 1957. At that time, he separated the components of the serum proteins according to their charge and molecular weight. So this is the type of zone electrophoresis. So this is the type of zone electrophoresis for the separation of the liquid, separation of the biomolecules from the liquid. So in this technique, we take a strip of cellulose acetate. So a native type of native protein charge to separate protein based on their isoelectric point. Isoelectric points means the point at which the total amount of positive charge equal to the total amount of negative charge. So these points occurs in a cellulose acetate paper at a fixed position. So total number of negative charge equal to total number of positive charge is known as the isoelectric point. So these isoelectric points are seen in this type of the electrophoresis, right? Now, principle of a cellulose acetate electrophoresis. In cellulose acetate electrophoresis, cellulose acetate strip is used as a supporting media for the separation of the biomolecule component from a liquid sample. The support medium is submerged in an electrophoresis running buffer maintained at a defined pH. So in this technique, the supporting media, that is cellulose acetate, is submerged in a buffer solutions which have a fixed pH value. It can provide a molecular sieving effect on electrophoretic separation of the sample based on their size and force between the molecules of the supporting media, right? It can also reduce convection current that are generated from excessive heat which occurs during the electrophoresis. So the term convection current, that means when the process is on proceeding, so after some times the solution becomes heated due to the current, because there is a heat also generated when the process taken more time. So due to the heating, convection current is oppose the movement of the molecules. So when the separation is completed, the components of the samples are isolated into distinct bands
दैट इज डिस्टिंक्ट जोन। तो जब आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है तो इलेक्ट्रोफोरेटिक जो पेपर होता है, जो मीडिया होता है, जो मीडियम है यानी कि सॉलिड स्टेट, उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर आपको बैंड दिखाई देंगे। तो किसका बैंड होगा? वो बैंड होगा बायोमॉलिक्यूल्स का, यानी कि चार्ज मॉलिक्यूल्स का होगा, चार्ज पार्टिकल्स का होगा। ठीक है ना? अब वो डिफरेंट बैंड्स को दिखेंगे क्योंकि जो सेपरेशन होता है बेसिकली उसमें हम दो चीज को हम ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। एक आपका होता है टोटल चार्ज ऑन द पार्टिकल्स एंड सेकेंड आपका होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो ये दो चीजें हैं जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मूवमेंट को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर सेपरेट आउट होते हैं और दे मेक अ बैंड, राइट। द सेलुलोज स्टेट स्टिक मेड फ्रॉम सेलुलोज स्टेट आर सैचुरेटेड फर्स्ट विद द रनिंग बफर। जो हम रनिंग बफर बनाते हैं तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इस स्ट्रिप को हम सैचुरेट करते हैं। इससे क्या होता है कि इससे ऑस्मोसिस की अगर जो प्रॉब्लम होती है, डिफ्यूजन की जो प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है ना। तो ईच एंड ऑफ द बफर सैचुरेटेड स्टिक ओवरलैप विद द फिल्टर पेपर विक। तो हम एक विक बनाते हैं फिल्टर पेपर का और उस फिल्टर पेपर के विक को हम बफर सॉल्यूशन के अंदर डिप करके और ऊपर तक जो सपोर्टिंग स्टैंड होता है वहां तक ला देते हैं और फिर सपोर्टिंग स्टैंड का जो के ऊपर जो पेपर को हम डिप करके रख देते हैं और फिर उसके ऊपर हम सेलुलोज स्टेट स्ट्रिप को हम उससे कनेक्ट कर देते हैं और उसका कनेक्शन कैसे हो जाता है, बफर सॉल्यूशन से उसका कनेक्शन हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो दोनों हमारे इलेक्ट्रोड हैं एनोड एंड कैथोड, वो बफर सिस्टम के साथ साथ है ना, ये जो आपका सेलुलोज स्टेट स्ट्रिप है इसके थ्रू जो है कनेक्ट हो जाते हैं और जैसे ही हम उसको ऑन करते हैं तो उसमें करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 7 पॉइंट है सैंपल ऑफ इंटरेस्ट आर डॉटेड ऑन टू द सरफेस एट अबाउट हाफ or 1/3 of the length of the cellulose state strip with the help of capillary tube। तो हम कैपिलरी ट्यूब में या माइक्रो पिपेट दोनों में हम यूज कर सकते हैं। यू कैन टेक द माइक्रो पिपेट और कैपिलरी ट्यूब टू लोडिंग द सैंपल। हम सैंपल जो है कैपिलरी ट्यूब में लेते हैं या माइक्रो पिपेट में हम सक करते हैं। तो अबाउट 5 म्यूल अबाउट 5 म्यूजी से 10 म्यूजी से हम सैंपल को कैपिलरी ट्यूब में लेते हैं, माइक्रो पिपेट में लेते हैं और एक स्पॉट बनाते हैं उस पेपर के ऊपर और फिर उस स्पॉट पर हम यानी उस डॉट के ऊपर हम सैंपल को बहुत केयरफुली लोड कर देते हैं। वहाँ हम कैपिलरी ट्यूब को टच कराएंगे तो सैंपल जो है अपने आप पेपर क्या करेगा, सोक कर लेगा। फिर उसको हम ड्राई करते हैं और तब जाके हम उसको फिर इलेक्ट्रोफोरेटिक मीडियम उसको हम अपलोड करते हैं। ठीक है, द सेपरेशन begins when इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड। यानी कि हम इतना सब कुछ करने के बाद हम पावर पैक को ऑन कर देते हैं, है ना। यानी करंट को हम ऑन कर दिया, अप्लाई टू ईच एंड ऑफ द स्ट्रिप विच एक्ट एज एनोड एंड कैथोड। तो दोनों एंड पर आपके एनोड और कैथोड लगे रहेंगे, है ना, और बीच में आपका पेपर लगा रहेगा जिसमें आपने सैंपल को लोड कर दिया। एट द एंड ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड कंपोनेंट्स कैन बी स्टैंड एंड अनस्टैंड फॉर विजुअलाइजेशन पर्पसेस एंड फॉर फर्दर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो जब आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है, जब इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर वहाँ से हम पेपर को स्ट्रिप को रिमूव करते हैं और फिर स्टेन करते हैं। स्टेन से हमें ये फायदा होता है कि हम उस पार्टिकुलर बायोमॉलिक्यूल्स की पहचान कर लेते हैं।
जब हम कोई स्टेन यूज करते हैं तो वो जो बायोमॉलिक्यूल्स होता है वो उस स्टेन उस कलर को गेन करता है, ठीक है। और जब कलर को गेन करता है तो उससे रिएक्शन होता है और वो पार्टिकुलर कलर जो है जनरेट करता है, जिससे हम पहचान जाते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो हमारा बायोमॉलिक्यूल्स है वो पेपर के इस पोजीशन पर प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम उसको विजुअलाइज कर लेते हैं। The technique is applicable to various types of samples like nucleic acids, proteins, polypeptides, dyes and polysaccharides। तो ये जो टेक्निक होती है वो ढेर सारे बायोमॉलिक्यूल्स के सेपरेशन में एप्लीकेबल होती है। जैसे कि आपका सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है आपका सीरम प्रोटीन्स एंड इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स। आपको पता है ना इम्यूनोग्लोबुलिन है ना, तो ये जो है ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ये एंटीबॉडी होते हैं और इनके जो है सेपरेशन में इस टेक्निक का वाइडली यूज किया जाता है इन फील्ड ऑफ द क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। बट इसके अलावा हम और भी बायोमॉलिक्यूल्स जैसे कि आपका न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, डाइज है ना, या मिक्सचर ऑफ डाइज जिससे कई तरह की डाइज मिक्स हों या पॉलीसैकेराइड्स हों, उनको भी जो हम इस प्रोसेस से सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है ना। प्रोसीजर में क्या है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर को जानने से पहले मैं आपको एक फिगर दिखा दूं। ये ठीक है ना, तो ये आज आपका जो है सेलुलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेटिक ये यूनिट है। बहुत सिंपल आपको ये चीज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपका ये बफर सिस्टम है ना, ये दो टैंक है ना, ये दोनों टैंक जो है आपस में एक बॉक्स के साथ ये फिट रहते हैं, ठीक है ना। ये पूरा आपका यहाँ से बॉक्स रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से, ठीक है ना, और इसमें जो है ये पूरा फिट रहेंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर एक टैंक है इसमें बफर भरा हुआ है, ये दूसरा टैंक है इसमें भी बफर सेम बफर भरा हुआ है ना, सेम पीएच का बफर। तो दोनों बफर हैं सेम टाइप के होंगे, सेम कंपोनेंट्स होंगे, सेम पीएच का होगा। तो यहाँ पर कैथोड लिखा हुआ है, यहाँ पर एनोड लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो दोनों बफर हैं बीच में एक स्टैंड होता है ना। स्टैंड मतलब कि आपका इस तरह से ये ग्लास का एक ऐसे स्टैंड बना रहता है, ठीक है ना। हालांकि इसमें सब कुछ शो नहीं हो रहा है क्योंकि एक रफ डायग्राम है। ऐसे स्टैंड होता है ग्लास का, ठीक है ना। तो अब इस स्टैंड के जस्ट पास में एक टैंक होता है और स्टैंड के जस्ट इस साइड जो है एक और टैंक होता है। दोनों टैंक में हम बफर भर देते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि हम टिश्यू पेपर को कई फोल्ड मैनी फोल्ड कर देते हैं, 2-3 फोल्ड करके हम एक एंड को यहाँ पर डिप करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे बफर में डिप कर दिया और फिर इसके ऊपर हमने यहाँ के इस जो स्टैंड है हम थोड़ी जो है लंबाई तक यहाँ तक जो हमने उसको ऐसे रख दिया, ठीक है ना। समझ गया हमारी बात ना। तो अपने टिश्यू पेपर को कई फोल्ड करके एक स्ट्रिप बनाओगे, उस स्ट्रिप को आप इस बफर पेपर में एक एंड को यहाँ डिप करोगे, ठीक है। तो जब यहाँ डिप करोगे तो क्या होगा, टिश्यू पेपर जो है इस बफर को सोख कर लेगा, है ना। और फिर हम जो दूसरा एंड है वो मात्र सिर्फ यहीं तक आना चाहिए, ध्यान रहे पूरा नहीं करते हम, सिर्फ यहीं तक। इसको हम विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विक, WIC, ध्यान देना। हम पहले विक बनाते हैं, किसका बनाते हैं, विक, फिल्टर पेपर को मैनी फोल्ड करके, है ना, 4-5 फोल्ड करके एक स्ट्रिप बना दिया। एक एंड को हमने यहाँ डिप कर दिया, दूसरे एंड को हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो ये पूरा जो पेपर क्या होगा, गीला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने पेपर पर एंड को यहाँ डिप कर दिया बफर सोल्यूशन में। ये क्या करेगा, बफर को ये सोक करेगा और फिर यहाँ तक जो है बफर पहुँच जाएगी, ठीक है। यहाँ हम एक विक और बनाते हैं उसी सेम साइज का टिश्यू पेपर का, और सेम प्रोसेस हम यहाँ भी करते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी आपने उस बफर को विक को आपने यहाँ पर ऐसे लगा दिया, सेम वही चीज इतना कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, हम अब लेते हैं सेलुलोज एस्टेट का एक स्ट्रिप काटते हैं। स्ट्रिप समझते हो ना, एक ऐसे पेपर का जो है एक स्ट्रिप काटेंगे,
है ना, विद द हेल्प ऑफ नाइफ आप काट लिया, ये पेपर स्ट्रिप है, तो इसी साइज का हम स्ट्रिप काटे, जो पेपर का जो लेंथ होगा वो जो तो टोटल जो स्टैंड है इसके लेंथ के बराबर है ना, ध्यान रखना इतने लेंथ आप यहाँ पर एक स्ट्रिप काटेंगे। किसका स्ट्रिप? सेलुलोज एस्टेट पेपर का। तो सेलुलोज एस्टेट जो है एक बहुत ही फाइन क्वालिटी का पेपर होता है जो पेपर मिल बनाती हैं, जहाँ पर रिसर्च के पर्पज से यूज किया जाता है। जैसे कि आपका जो आप लोग पेपर यूज करते हो अपने लाइफ में कोई चीज़ लिखने पढ़ने के लिए, वो भी एक पेपर होता है। एक टिश्यू पेपर होता है, आपने नाम सुना होगा टिश्यू पेपर का, वो भी एक अलग टाइप का पेपर होता है, लेकिन वो भी पेपर ही होता है, बट उसकी क्वालिटी अलग होती है ना। आप जिस पे कॉपी बनाते हो लिखते हो वो भी पेपर होता है, बट उसकी क्वालिटी अलग होती है। एक पेपर ऐसे भी होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफिक पेपर, है ना, व्हाट्स में नंबर 1 फिल्टर पेपर, नाम सुना होगा ना। तो फिल्टर पेपर भी है, वो भी फिल्टर पेपर ही, वो भी पेपर ही होते हैं, बट उसकी क्वालिटी जो है अलग होती है। वैसे ही आपका क्रोमेटोग्राफिक पेपर होता है, वो भी एक पेपर होता है, बट उसकी भी क्वालिटी जो है अलग होती है। तो ऐसी कई क्वालिटी के पेपर होते हैं, और सब जो है बनते हैं सेलुलोज से ही, प्लांट के सेलुलोज के पार्ट से ही बनते हैं। ये भी पेपर जो है प्लांट से ही बनता है, बट इसका नाम है सेलुलोज एसीटेट। इसमें जो है एसीटेट कंपाउंड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, और वो सॉल्यूशंस बायोमॉलिक्यूल्स को बहुत स्लो, बहुत फास्ट नहीं, बहुत स्लो जो है रन कराता है, जिससे ये फायदा होता है जो बायोमॉलिक्यूल जो है जब स्लो रन होता है उससे पेपर के अंदर, तो जो बायोमॉलिक्यूल होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स में सेपरेट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज एंड मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम इस पेपर का यूज करते हैं जिसका नाम है सेलुलोज एसीटेट पेपर, ठीक है। तो उसी के नाम से इस टेक्निक का नाम पड़ गया है सेलुलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये पेपर कटिंग करने के बाद हम जो हमारे पास सैंपल रहेगा, तो कोई सैंपल मान हमने सीरम ले लिया, है ना, तो सीरम में मुझे प्रेजेंट होंगे आपके इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट रहेंगे, है ना। तो अब उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, उसके साथ साथ उसमें ग्लोबुलिन होता है, एल्बुमिन होता है, लाइक दैट। तो हम सबको ये सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे एक डॉट बनाओगे, ठीक है ना, एक पेंसिल से डॉट बनाओगे, और फिर इसी जो है गोल से डॉट में आप सैंपल को बहुत ही केयरफुली माइक्रोपिपेट या कैपिलरी ट्यूब से सैंपल को हम लोड करते हैं। सैंपल का जो अमाउंट होगा, वॉल्यूम होगा, वो 5 to 10 माइक्रोलीटर होगा। कितना होगा? 5 to 10 माइक्रोलीटर, यानी बहुत कम अमाउंट में होता है, क्योंकि हमें अपना क्रिटिकल करना है। सैंपल को यहाँ पर लोड करने के बाद जो है हम इस पार्ट को थोड़ा सा ड्राई करेंगे, है ना, एयर ड्राई करेंगे, हम हीटिंग नहीं करेंगे। हीटिंग से नुकसान हमको ये हो सकता है कि योर सैंपल्स बिकम डीनेचर्ड। अगर प्रोटीन है या कोई न्यूक्लिक एसिड्स है, एंजाइम है, दे बिकम डीनेचर्ड। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि आप इस सैंपल को एयर ड्राई करो, है ना। इतना करने के बाद देन यू पुट दिस स्टिप ऑन द अपर पोर्शन ऑफ द दिस स्टैंड। तो ये जो ग्लास स्टैंड है इसके ऊपर आपको इस स्टिप को ऐसे रख देना है, जो यहाँ दिखाया गया है ना, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो जिससे लिखा हुआ है। तो सेम यही चीज हम इसके ऊपर, ये तो खैर वो पूरे पेपर को दिखा दिया है कि ऐसे ऐसे बैंड बनते हैं, लेकिन हमें यहाँ पूरा नहीं दिखाना है। हम पेपर को पहले इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। जब पेपर को रख देंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ आपने विक बनाया है। क्या बनाया है? विक। किसका विक है? मेनी फोल्ड्स ऑफ द टिश्यू पेपर, है ना, और ये गीला हो चुका है। अब इस विक के ऊपर जब इस पेपर को हम रखेंगे तो जाहिर सी बात है ये एंड और ये एंड क्या हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे और कनेक्ट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रिप, ठीक है ना। अब जो होगा ये पेपर जो है ये इस पेपर को जब ये पेपर जब से इससे कनेक्ट होगा तो क्या होगा, अब जो है ये भी गीला होना शुरू हो जाएगा, है ना। इधर से भी गीला होगा, इधर से भी गीला होगा, क्योंकि वो सोक करेगा ना बफर को यहाँ से, और पूरा जो पेपर जो है आपका ये बफर को सोक करके ये गीला हो जाएगा, ठीक है। जब ये पेपर गीला हो जाएगा उसके बाद हम पावर पाइप जो आप यहाँ लगाया हुआ है, यानी कि जो आपने पावर सप्लाई दिया हुआ है, पावर सप्लाई को हम ऑन कर देंगे, ठीक है ना। और हम क्या करेंगे, गीला होने के बाद, क्यों? क्योंकि हमें जो है पहले पेपर को
सैचुरेट करना है विद रनिंग बफर से। तो जब सैचुरेट हो जाएगा तो इसमें जो है ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन की प्रॉब्लम जो है नहीं होगी या बहुत लिस्ट होगी, न के बराबर होगी। तो इस तरह से जो मूवमेंट होगा, जो माइग्रेशन होगा बायोमॉलिक्यूल्स का, वो बहुत ही क्लियरली और अच्छे तरीके से होगा। तो इसको जब आप लोग ऑन कर दोगे इस पावर सप्लाई को, तो चूंकि ये एनोड है, थोड़ा सा ये जो ये साइनिंग है जो है ना, ये साइन जो है ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। ये एनोड है, एनोड को हमेशा पॉजिटिव होता है और कैथोड जो है नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही स्टार्ट होगा तो इस डॉट में प्रेजेंट जो आपके बायोमॉलिक्यूल्स यानी प्रोटीन है, अब वो अपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के हिसाब से क्या होंगे, वो रन करेंगे, ठीक है ना। और जहां उसको अपना आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मिल जाएगा, वो प्रोटीन वहां जाके स्टॉप हो जाएगा, आगे जो है मूव करना रुक जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, these biomolecules are separated on the basis of their net charge and their molecular weight। यहाँ पर लिखा गया है, देखो ये है बैंड है। तो ये जो है पेपर को तब दिखाया है जब प्रोटीन सेपरेट आउट हो चुका है ना। ऐसे ऐसे जो है उस जो है स्ट्रिप में बैंड्स बनते हैं। आपने यहाँ सैंपल लोड किया है, उसे सैंपल लोड जो है बीच में करते हैं अगर आपने प्रोटीन लिया है तब, ठीक है। अगर आपने प्रोटीन लिया है देन यू लोड द सैंपल इनसाइड द पेपर एट द मिडिल पोर्शन ऑफ द पेपर, राइट। इसके बाद इसकी रिपोर्ट आई थी आप पर, कोई मैसेज किया था? कौन है कौन सी हेल्थ केयर? जरा मैंने सिद्धांत सर से बात भी किया और हमारे क्लास में, हमारे क्लास का है। हाँ हाँ, इसका पेपर है। हमको तो कुछ न्यूज तो कह रहा मैंने सर को मैसेज कर रखी रिपोर्ट। इसका फोन तो आया था, हम बाइक चला रहे थे तो कहाँ हम उठाते हैं, मैसेज चेक नहीं किया। मैसेज किया है, हाँ, वो भी इसकी रिपोर्ट मैसेज कर दी है। फोटो के पास में फोटो ना मेरे पास तो उसका नहीं आया कोई मैसेज। मेल नहीं किया है, कहाँ है विवेक? गेट पे फोटो कहाँ है? फोटो फोटो कर रहा है। फोटो ले जाए तो निकल जाएगा, रिपोर्ट पकड़ो निकल। फोटो नहीं है कोई बात पर पर्स लाए और आई कार्ड कहाँ है? एक काटते हैं। फोटो चाहिए तो अभी तो चलो ले लो, फिर अभी तो साइन कर देंगे। यहाँ पे ये भी देखा क्या लिखा है? आर्टिफिशियल टेस्ट दोनों कौन सी डेट का होगा वो देखो ना। डेट तो कल ही है। नहीं इसका आया जी है कोई नहीं, कुछ नहीं वो किया ये दे रखा है इसमें है। रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है, कहाँ से कराया है? नेगेटिव रामपुर, ठीक है। कब वो डेट कब कराया, कब तुम्हारा रिजल्ट आया वो देखो। 30 तारीख का कराया है, 30/1। मैंने रिपोर्ट कार्ड इशू आपका डेट आज हुआ था। इसका मतलब कुछ मैंने कुछ
इसका नाम नहीं है इसमें? नहीं नाम तो है। वो रिपोर्ट का वो कहाँ है इसका लिखा है, किस जगह लिखा है रिपोर्ट का, वो साफ दिख नहीं रहा है। रिपोर्ट कहाँ लिखा है, निगेटिव पॉजिटिव कुछ है। हाँ सर, इसके रिपोर्ट आपको भेजिए, पूछो तो। हाँ बात करा। बात हो गई। हाँ हेलो, हाँ विवेक, मेरे बच्चों का हाँ तुमने कहा क्या भेजा हमको? हम भी नेपाली पढ़ाई आया नहीं था वो। आ रहे हो। टेक्स्ट मैसेज कर रखा है। हाँ यहाँ भी सेंटर आज का रिपोर्ट चेक कर लेना। सिनेमा हर बार में ना क्या कर रहा था? पूरा टेक्स्ट मैसेज कर रखा है। इसका सही है, इसका सही है ना सर? हाँ हाँ, इसको भेजिए जाएगा तो ना। मैं भी हो गया था, जैसे 2-3 और लाने पड़ेंगे इसलिए ना। देख के हमें जाना। और सुजीत कुमार पटेल नहीं आया? आए ठीक है यहीं पे लगा रहे हैं। हाँ एक पेरेंट कंसर्न पीरियड, चलो कोई बात नहीं। तो इसका बेसिस नहीं है। थीसिस सब हो गया, तुम लोग का क्या करो, सब अवार्ड हो गया, बच्चे पास आउट हो गए, तुम लोग का बस बचा था 3-4 लोगों का। तुम लोग कुछ पता करते हो नहीं कहाँ से क्या करना है। उनको फोन किया था कभी उनको, आदित्य सर को? हाँ सर से तो बात होती रहती, तो इस बार तो कोई चल रहा उन्होंने था। बताया नहीं कि कैसे क्या है? नहीं मुझे लगा अब इस बार एग्जाम होगा उसी में। अरे सब खत्म हो गया तुम्हारे साथ, उनका सबका रिजल्ट आ गया, लोग अपना कभी सालों चले गए। बस तुम नेपाल के बच्चों का बस बचा हुआ है। ठीक है ना? थीसिस करो तुम जल्दी से, उनको जल्दी से तुम्हारा हो जाएगा इवेल्युएशन। बेसिस तो मैं बना के उसको अवश्य सर को सेंड किए थे। थायराइड कर दिया था तो फिर प्रिंट कहाँ किया? प्रिंट किया था? ऑनलाइन प्रिंट कर दिए होते ऑनलाइन। वो सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ेगा ना। अरे स्कूल हो गया था तुम्हारे, कई साल पहले ऑनलाइन जहाँ थे वहीं से उन्होंने ऑनलाइन प्रिंट कर दिया था, तुमको नहीं बताया गया था? नहीं सर ये पता नहीं। भैया तुम जानो, तुम्हारे हेड सर जाने, हम लोगों को तो कुछ आइडिया नहीं है। जो बच्चे बाहर के थे उन सबका हो गया था, वो ऑनलाइन सब कर दिए थे। वो पता ही नहीं। पता जब करोगे तब ना, यहाँ से खुद तुम्हारे थे इंटरनल आदित्य सर, वो इंटरनल थे, उनसे पूछना कि सर आपने हमको नहीं बताया सही से लिए। नमस्ते सर। वो आ गए नेपाल से? कितना प्रॉब्लम कितना झेल के आ रहे सर, हमको पता है सर। सब 15 से ज़्यादा सर वो चेंज किए सर, बस 15 से हाँ ज़्यादा नेपाल से आते आते इतना आपातकाल में डेट निकला ना सर, वो भी इतना पास में डेट निकला। पहले वाले क्यों नहीं आ गए? पहले वाला तो और बड़ा बात है, बॉर्डर ही सील था सर, क्या करोगे भाई, उसमें तो बॉर्डर ही सील था। तुम लोगों को बाहर से आना था ना, बात ये थी ना, तुम लोगों को सर तो ऑनलाइन करा देते तो कितना अच्छा हो तुम जाता। लोग ऑनलाइन तो एग्जाम संभव नहीं था ना, ऑनलाइन तुम लोगों का बस वाइवा वो संभव था। कितना कब जाना है सर, बता देते सर तो सर। हाँ उसका आ गया है, इसको बोल दीजिए मुकेश का, विवेक का बुला दीजिए सर। बुला दी आ गया। फोटो भी चाहिए सर? हाँ फोटो तो लाएंगे, फोटो है। तुम लोग फोटो नहीं चलते तो कैसे काम चलेगा भाई, कैसे बना सर एक लगा देंगे। कम से कम एक साथ में 1-2 फोटो, ये सब पढ़ाई लिखाई में हमेशा फोटो काम आता है। हमेशा काम हमेशा सर सही
पूरा तैयारी के साथ देखो आते मैं हैं सर। ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, लगाओ फटाफट लगाओ फोटो। को भेज दिया ऊपर अंदर इतना इतना ऐसे आए ना सर, हर एक बार तैयारी के साथ आते थे, तो जैसे तैसे भाग के आए। आ जाओ इधर आओ। हाँ। वो कहाँ है सर हमारा एग्जाम का डेट? वो हमारे को कुछ नहीं सर एग्जाम आई डी कार्ड, अब आई कार्ड एग्जाम सेल से ले लो। ये तुम्हें ऐसा ना देखो आज पेपर है, कल आके पूरा वो कर ले। अब सर कैसे भाग भाग के आया मुझे पता था, 20 से ज़्यादा बस चेंज किया सर पेपर आपने। ले लो ना, तो मुझे क्या है वो कल ही बनाया आपने पेपर है। इस बार मैं चाहता हूँ पहले, हम तो कम से कम 1 महीना पहले आना चाहिए ना सर, एक महीने के पहले 15 दिन पहले सर। इतना इतना प्रॉब्लम हुआ सर, क्या पता है। हाँ, इस बार जैसा तो कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं हुआ था। चलिए प्रोग्राम क्या है बताइए। हाँ जी सर, ठीक है। हम लोग 18-20 तुम लोगों ना थोड़ा सा वो भी करवा लेना, थीसिस का अपना। वो हो गया सर हमारा तो। हो गया है? हाँ। बस ठीक है। एक अभी आया तुम्हारा साथ वाला, उसका नहीं हुआ है। मेरा नहीं हुआ। सुजीत यादव का नहीं हुआ है। इसी से कुछ पता ही नहीं। अगले साल होगा जरा। इन लोगों से नहीं कुछ, इन लोगों तो हो गया है। हाँ हो गया। तुम्हारा नहीं हुआ था सुंदर? नहीं सर। इन लोगों से पूछते नहीं हो? आज का दिन है। आज का कोरोना रिजल्ट में हाँ हेलो, ये आवाज जा रही है? मैं दिखा नहीं था। आवाज जा रही है? आर यू लिसन मी? हो गया सर। हो गया है। ये आवाज जा रही है हमारी? आर यू लिसन मी क्लियरली? आवाज जा रही है? हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, राइट। वो वाला तो देना पड़ता है वहाँ पे, तब ये लगाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका ये दिख रहा है फिगर में, ये एक बहुत ही सिंपल एक डायग्राम है सेलुलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस का। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप सब पूछ सकते हो। तो वही आपका प्रोसीजर में क्या करना है, तो जो मैंने आपको डिस्कस किया है होता वैसे ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा इस तरह लिखा गया है कि सैंपल प्रोटीन इज डॉटेड ऑन द मार्क सेंटर। यह साफ साफ लिखा हुआ है। सर हम लोग जो आपने पीछे जो आपने देखा था बिल्कुल उसी पर ये है। ठीक है ना? सर हम लोग को ऐसे कहाँ पढ़ाएगा? तुम लोगों के टाइम में सब था ही नहीं। तुम लोग तो पढ़ा तो गया था ऑनलाइन। ऑनलाइन तुम लोग क्लास चली थी। चल रहा था सर, तब वो क्या भेजते थे सर, पता भी नहीं चलता था कैसे जाता था, क्या जाता था। आज कैसे होगा हम लोग का एग्जाम? अरे कुछ नहीं हुआ है। ठीक मारना है ऑब्जेक्टिव में। ना सर, वही तो आना चाहिए सर, बता देना 2-4 दिन सर। कहाँ तुम लोग पढ़ा है क्लास में? कौन सा क्लास में? अभी तो वो एडमिट कार्ड सब मिलता है। तुम लोग काम दे दो। अब सर थोड़ा आना ना सर, अब देखेंगे किस क्लास में तुम लोग का है। मैं अभी इन्फॉर्म करके जाऊँगा सर कौन सा क्लास में है। अब डिपेंड करेगा कि ड्यूटी किसकी है, समझ में आ रहा है कि नहीं। नहीं है सर, पूरे 4 ही लोग हो ना? सर वो था तुम लोग बस 4 ही लोग हो और कोई नहीं। 4 ही में सर। तुम्हारे सब साथ में सब पास हो पास चले हो गए, गए। डिग्री लेके तो जॉब डिग्री कर रहा है सर। उनको डिग्री मिल गई। जॉब कर रहा है सर।
वही आप लोग बाहर थे, इसका तो हो सकता था कि नहीं आया कि उस टाइम में पॉजिटिव था सर इसका। किसका पॉजिटिव था? दिवेश का था। जिसका थीसिस नहीं हुआ है ना, हेड सर से बात करके फटाफट करवा लो, है ना। इसका करा लिया तुम लोग जो कहाँ सोए थे। पता जब करोगे तब ना, बैठ जाते हो कुंडली मार के, तो हाथ को हिलाया करो। ठीक है ना सर उसमें लिख देते बताएंगे सर, ठीक है ना। भरने वाला बाद में करना, पहले सिलेक्ट कर लेना। पहले सिलेक्ट करेंगे, भरने वाला कुछ होगा तो दिखा दे। आज कौन सा पेपर तुम लोगों का है? ये कौन सा पेपर है इन लोगों का? हाँ हाँ हाँ, हाँ मेरी आवाज आ रही है? आवाज जा रही है हमारी? या अमन आवाज जा रही है? उपासना, आर यू लिसन मी? ठीक है, अभी तुम्हारे सीनियर्स आ गए हैं ना, उनका बेटा आज एग्जाम है, यूनिवर्सिटी एग्जाम है, तो थोड़ा मैं उसी में बिजी हो गया था। उन लोगों को एडमिट कार्ड वगैरह देना था ना, और रिपोर्ट वगैरह लेना था, तो सब थोड़ा सा आ गए थे, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। खैर कोई बात नहीं। तो प्रोसीजर में आप जो मैंने बताया बिल्कुल सच आपको फॉलो करना है। सेंटर प्रोटीन इज डॉटेड ऑन द मार्क सेंटर ऑफ द सेलुलोज स्ट्रिप, जो आप लोगों ने पहले बताया था। ठीक है, यहाँ पर एक बफर का नाम दे दिया है ना, बारबिटाल बफर। तो यहाँ बफर तो एक स्पेसिफिक यही नहीं है, और भी हम बफर यूज कर सकते हैं। द प्रोटीन दैट माइग्रेट टुवर्ड द एंड एनोड एंड पीआई ग्रेटर देन द पीएच ऑफ द बफर। केवल होता है कि आइसोलेटिक पॉइंट, ये मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया था। पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स माइग्रेट टुवर्ड द कैथोड, आपको दिख ही रहा है, एंड नेगेटिवली चार्ज वाले मूव टुवर्ड द एनोड। तो जो एनोड होता है वो पॉजिटिव डायरेक्टिव होता है। इस तरफ कौन से मूव करेंगे? जो जिस पे चार्ज नेगेटिव होगा। तो जैसे आपको पहले में डिस्कस कर, हम इसको कर चुके हैं, हम इसका डिस्कस कर ही लिया ना। तो इसका हम देखेंगे एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो अब इस इलेक्ट्रोफोरेसिस का एप्लीकेशन क्या है, इसको देखेंगे। तो एप्लीकेशन जो इसके ढेर सारे हैं। तो पीछे के स्लाइड्स में इफ एनी प्रॉब्लम देन काइंडली ड्रॉप आउट मैसेज इन चैट बॉक्स। इन बैक स्लाइड्स किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमें आप बता देना। हाँ बेटा, ये तुम्हारे सीनियर्स हैं, इनका थर्ड सेमेस्टर का, सॉरी फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देना है। क्योंकि बच्चे नेपाल से थे, तो नेपाल से एग्जाम देने के लिए आ नहीं पाए थे उस टाइम, कोविड जब चल रहा था ना। तो जो तुम्हारे साथ सीनियर थे उनका एग्जाम जो अक्टूबर में हो गया था, फाइनल ईयर का। लेकिन ये नेपाल में बच्चे थे तो ये आ नहीं पाए थे, तो इनको अब जाके मौका मिला है एक बार और एग्जाम देने का। तो यही बच्चे वो हैं, 3 4 5 हैं, ये बस बचे हुए हैं। बाकी सबको जो डिग्री भी मिल गई, अपना सब जॉब करने चले गए, यहाँ हम अपने काम में लग गए। तो यही सब बच्चे हैं। हाँ बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है पीछे की स्लाइड्स में? अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आप आगे इसका एप्लीकेशन पढ़ें। आज थोड़ा मौसम भी ख़राब है, हमको आते समय जो है कपड़े गीले हो गए हैं रास्ते में। मेरा जो है रेन कोट धोखा दे दिया, तो कपड़े थोड़ा गीले हो गए हैं, तो ठंड भी लग रही है हमें। हाँ भाई बताओ, कोई प्रॉब्लम किसी को है यहाँ तक? तो हम आप आगे पढ़ें। ठीक है, तो सब क्लियर है यहाँ तक, किसी को दिक्कत नहीं। अब इसका हम एप्लीकेशन देखें। तो इसका एप्लीकेशन जो है कई फील्ड में होता है, लेकिन बेसिकली जो इसका एप्लीकेशन है ना,
वो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में होता है, क्योंकि क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में इसलिए इसको ज़्यादा यूज करते हैं कि इसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, है ना। मेन पर्पज क्या है कि हम जो इसको जो है इजीली जो है हैंडल कर सकते हैं, और जो हमारा मेन पर्पज होता है हम उसको बहुत जल्दी जो है अपना रिजल्ट गेन कर सकते हैं। लेकिन हम अगर कोई हम और प्रोसेस यूज करते हैं, जैसे कि जेल, एग्रोज जेल या पॉलीएक्रिलामाइड जेल, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। तो उसमें इसके कई समय ज़्यादा समय लगने की वजह से जो है हम उस टेक्निक को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट इसका एप्लीकेशन है सीरम एनालिसिस। तो एक जो साइंटिस्ट जिन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया था, है ना, जोकिम काहन ने, उन्होंने जो है इसको इंट्रोड्यूस किया टू सेपरेट द प्रोटीन्स, सीरम प्रोटीन्स, ब्लड प्रोटीन्स, है ना। तो उसको सेपरेट आउट करने में जो है इन्होंने सबसे पहले इस टेक्निक का यूज किया था। तो सीरम एनालिसिस पर्टिकुलरली फॉर द सेपरेशन ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इन द ब्लड सीरम। तो हमारे ब्लड सीरम में आपको पता है कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स होते हैं। सपोज मान लो कोई नॉर्मल पर्सन है और कोई एक सिकल सेल एनीमिक पर्सन है, जो आपको पता है ना सिकल सेल एनीमिया, तो उसका हीमोग्लोबिन अलग होता है और जो नॉर्मल पर्सन उसका जो हीमोग्लोबिन अलग होता है। तो हम दोनों प्रोटीन्स को अलग अलग करके हम उसको इसकी स्टडी में हम इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं, और बेसिकली इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी, ठीक है। तो अब ये हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स दैट कैरी द ऑक्सीजन इन द रेड ब्लड सेल्स। तो उसमें हम हीमोग्लोबिन को हम ही क्यों पढ़ते हैं, इसीलिए कि आपको पता है कि हीमोग्लोबिन सिकल सेल एनीमिक जो होता है उसमें अलग होता है, और जो नॉर्मल पर्सन होता है उसमें अलग होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है ना। अगर इसमें कोई चेंजिंग हो गया तो प्रॉपर जो है ऑक्सीजन का सप्लाई हमारे ब्लड के थ्रू नहीं हो पाता है, या अगर कोई हमारे जीन में म्यूटेशन हो गया या हीमोग्लोबिन में कोई चीज़ म्यूटेशन हो गया है, तो वो भी जो है हम इस प्रोसेस से उसको हम पता कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट आपका है ट्रांसफर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड, IEP, है ना। तो इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको पता होना चाहिए कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, है ना। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कई तरह के होते हैं, आपको पता, आपने जो पढ़ा है वो 5 टाइप्स के होते हैं, IgE, IgM, IgA, IgB एंड IgG, है ना। ये 5 टाइप्स के जो है इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनको इस प्रोसेस से हम सेपरेट आउट कर सकते हैं एट अ डिफरेंट बैंड्स में, और फिर उसकी हम फर्दर स्टडी करने में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से अगर कहीं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, तो जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है उनको भी जो है हम इस प्रोसेस से सेपरेट आउट कर सकते हैं, और फिर उसकी भी स्टडी हम कर सकते हैं, है ना। तो कुल मिला के जो है ये इम्यूनो, इसको हम बोलते हैं इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। तो काफ़ी जो है ये यूजफुल मेथड है इन क्लिनिकल पैथोलॉजी। नाउ द लास्ट आपका है पॉइंट, ये है काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस और सेलुलोज एसीटेट। यहाँ पे आप काउंटर करते हैं ना, तो काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस CIE इज एन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक दैट टेस्ट फॉर अ कंपैटिबल एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, है ना। तो जहाँ पे अभी इसको पीछे डिस्कस ही किया था कि जहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है ना, तो उसको स्टडी करने में या सेपरेट आउट करने में जो है हम इस टेक्निक को यूज करते हैं। तो CIE serum is applied on the side of the medium and the sample on the other side. After the application of active field, the serum and sample migrate to the middle, and if antibodies are present in the serum, the band representing a antigen antibody reaction, ठीक है ना।
तो अलग अलग एंड पर हम दोनों को सेपरेट लोड करेंगे, एंटीजन को और एंटीबॉडी को, है ना। और फिर वो आके अगर सेम रिएक्शन अगर उनके बीच पॉसिबल है तो वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, और उसको हम इस प्रोसेस से आइडेंटिफाई विजुअलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट आपकी है स्लाइड में, तो कौन डिमोन्स्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ सेलुलोज स्टेट इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर द CIE। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है टू सेपरेट द इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट सेलुलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसका आपको जब कोई एग्जाम में आता है तो क्वेश्चंस ऐसे पुटअप किया जाता है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन ऑफ द सेलुलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। हाँ बेटा, एक मिनट, आपके सीनियर्स सब आ चुके हैं तो थोड़ा आपका क्लास भी एंड हो गया है ना। अब मैं क्लास को एंड करता हूँ, फिर कल की क्लास का वेट करना, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। कितना तक पढ़ा रहा है सर? तुम्हारी भी क्लास ऐसे ही चलती थी। सर वो